नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो गया गुजरात बुलेटिन का। बात होगी अहमदाबाद के, जहां पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह वाघेला की अध्यक्षता में अहम बैठक आयोजित की गई। साथ ही बात होगी गांधीनगर की, जहां विदेशी शराब के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। अहमदाबाद में पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह वाघेला की अध्यक्षता में कर्ज मुक्ति अभियान की बैठक आयोजित की गई, जिसमें उन्होंने अडाल्ज में कर्ज से परेशान लोगों की समस्याएं सुनी और गुजरात सरकार से अपील की कि हिमाचल प्रदेश की तरह छोटे व्यापारियों का कम से कम 5 लाख रुपए तक का कर्ज माफ किया जाए और जो लोग अपना कर्ज चुका नहीं सकते उन्हें 2 साल तक बिना ब्याज और पेनल्टी की राहत दी जाए। जनता दरबार में कर्ज मुक्ति अभियान के फाउंडर शहनवाज चौधरी, राज्य इंचार्ज राजेश्वर ब्रह्म भट्ट, राज्य अध्यक्ष नारायण मकवाना और टीम के अन्य सदस्य मौजूद थे। साथ ही गुजरात के विभिन्न जिलों से आए 200 से अधिक व्यापारी, किसान, मजदूर, महिलाएं और नौकरी पेशा लोग शामिल हुए। सभी ने अपनी समस्याएं लिखित रूप में टीम को सौंपी, जिन्हें अभियान के माध्यम से मुख्यमंत्री तक पहुंचाया जाएगा। कर्जा मुक्ति अभियान आगेवान अपना चौधरी साहेब, राजेश्वर भाई ब्रह्मभट्ट, एमनी टीम, अमरा नारायण भाई मकवाड़ा, बधानो आभार मानु छू के कहेवातुं आ विकसित गुजरात, सुखी गुजरात, एमां दुखी लोकोनी वेदना सांभळनारुं कोई नथी। एमनी वात सांभळीने तमारा बधाना दुखमां भाग लेवा माटे जे रात दिवस एक करी रह्या छे ए बधानो आभार मानु छुं। अने मने जे समाचार मळ्या एमां हिमाचल सरकारे 1 लाख रूपियानुं देवुं माफ कर्युं छे। हूँ मानु त्यां सुधी गुजरात सरकारने आपणे टाइम लईने मुख्यमंत्रीने कहेवाय के तमे कम से कम 5 लाखनुं देवुं माफ करो અને આપણી સરકાર આવશે અને તમે લાવશો તો તમારું 25 લાખ રૂપિયાનું દેવું હોય તો એ માફ કરીશું। એમાં કંઈ કરોડો રૂપિયા નથી, માલિયાના અને અદાણી અંબાણીના ના કે સ્ટર્લિંગ વાળા કે બીજા ત્રીજાના એવા રૂપિયા લોકો લઈને ભાગી જાય છે। આપણે તો ઘરે બેઠા છે, ન છૂટકે આ પૈસા લીધેલા છે। એટલે હું हिमाचल सरकारનો आभार मानु छूं અને ગુજરાતના મુખ્યમંત્રીને જાહેરમાં વિનંતી કરું તમારા બધા તરફથી કે કમસે કમ તમે 5 લાખ તો માફ કરો, પછીની વાત પછી એ માફ કરશે એવું હું અપેક્ષા રાખું છું। હમણાં જે કંઈ આપણો અરવલ્લી પર્વત આખું દુનિયા વેચવા બેઠા હોય એવું આપણને લાગે। એ અરવલ્લી ખાલી પર્વત નથી, એ જીવાદોરી છે। આપણે અહીંથી માંડીને દિલ્હીની ભાગોળ સુધી, દિલ્હીમાં જે રાયસીના હિલ છે ને જેમાં વડાપ્રધાન ને બધી ઓફિસો આપણી પાર્લામેન્ટ હાઉસ ત્યાંથી શરૂ થાય તો અહીં સુધી આપણા અમદાવાદની ભાગોળ સુધી ને પંચમહાલ ગોધરા સુધી આખી લાઈન છે। જ્યાં રાણા પ્રતાપનો આશરો હતો, રાણા પ્રતાપને અરવલ્લીએ આશરો આપેલો અકબરની સામે લડતા કમસે કમ અત્યારે અંબાજી જતા આપણને દુઃખ થાય કે જે બધા પથરા તોડીને છત્તીસગઢમાં મોટા કૂવા થઈ ગયા, એક 1000 ફૂટ ઊંડા, એટલા બધા પથ્થરો તોડીને લોકો અત્યારે કોન્ટ્રાક્ટરો લઈ જાય છે બીજેપીની સરકારમાં। આમ નામ ચાલશે તો આખું ચોખ્ખું થઈ જાય। એ ચોખ્ખું થાય એનો વાંધો નથી, પણ એમને ખબર નથી કે આ અચલ છે। આ હિમાચલથી પણ જૂનો છે આ અરવલ્લી, એ અચલ છે, ચાલી શકતો નથી। તમે એને ચાલતી વસ્તુને તમે આમ તેમ કરો તો ચાલે, બાકીનું કરો તો ચાલે, પણ તમે આ વસ્તુ જે બહુ મોટો આશરો કહેવાય, બધા પ્રાણી, પશુઓ, પંખીઓ, દુનિયાભરની બહુ હિમાચલથી જુદો એવો પર્વત કમસે કમ બચાવો। અને નહીં બચાવો તો લોકો તમારી પાછળ પડીને જ્યારે મોકો આવશે ત્યારે આ પ્રજા સમજદાર છે, દુઃખી છે, પણ સમય આવે જવાબ આપવાવાળા છે। એટલું જ નહીં, એમને અંબાજીનું મંદિરના જે દાતા મહારાજા હતા, વર્ષોથી આઝાદી પહેલાં તો એ માલિક હતા, અંબાજીના માલિક એ હતા। તો એમને કમસે કમ જે નવરાત્રિની 8મે હોય એમાં યજ્ઞનો હવન થતો હોય, એમાં જે પૂજા કરતા હોય, નારિયેળ હોમવાની જે વિધિ હોય, या માતાજીના જે કંઈ ત્યાં પ્રતીક જે છે અંબાજીનું મંદિરમાં, ખરેખર તો ત્યાં સામે પાળ ઉપર છે આરાસુર પેલી બાજુ, પરંતુ એમાં પણ જો રોક લગાવતા હોય તમે તો આ નિંદનીય છે। હાઈકોર્ટના ચુકાદાને હું બહુ માનતો નથી, આમાં ચુકાદો તો આવે ને જાય। તમે શું કરી રહ્યા છો? જે માણસોએ પોતાના રજવાડા આપી દીધા, એ કમસે કમ એક નાનકડો યજ્ઞ તમે રોકવા માંગો છો એમના હાથે જે પવિત્ર કામ થતું હોય એમાં, અને કોઈ प्रजा ने पब्लिक ने कोई तकलीफ नहीं। बापू ने बताया हम लोग कर्जा मुक्ति अभियान चला रहे हैं। मैं कर्जा मुक्ति अभियान का संस्थापक हूं। हमारे साथ राजेश्वर ब्रह्मभट्ट जी हैं जो प्रदेश प्रभारी हैं, नारायण भाई मकवाना हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, चंद्रेश भाई हमारे ऑफिस को मैनेज कर रहे हैं, टीम को मैनेज कर रहे हैं। समस्या बहुत गंभीर है
और कर्जे के कारण लगातार लोग आत्महत्या कर रहे हैं। और हमने पहले भी कार्यक्रम किया रिवर फ्रंट पर, वहाँ भी लोगों को बताया, 20-25 हज़ार से ज़्यादा लोग थे वहाँ पर, और अभी भी लगातार लोग आ रहे हैं। आप देख रहे हैं इतने सारे लोग यहाँ मौजूद हैं। और बापू ने जब से अपना प्रमाण पत्र दिया है तब से कम हार्श रिकवरी रुक गई है, गाली गलौज बदतमीजी नहीं हो रही है। वरना पहले तो ये हो रहा था कि गुजरात के व्यापारियों को, महिलाओं को गाली गलौज दी जा रही थी, उनको बोला जा रहा था कि भाई आप अपनी बहन को, बेटी को, बीवी को भेज दो अगर आप पैसा नहीं चुका पा रहे। तो कितनी शर्म की बात है ये। हम वर्तमान मुख्यमंत्री जी से मिले, बापू के रेफरेंस से जाकर के मिले, उनसे मुलाकात की, और भूपेंद्र भाई पटेल जी ने भी कहा कि अगर कोई समस्या आ रही तो हमें बताइए, हम लोग समाधान करेंगे, क्योंकि हमारे पास ऐसी शिकायतें नहीं आ रही। तो जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं उन सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अपील भी करूंगा, हाथ जोड़कर विनती भी करूंगा कि कर्जे के कारण कोई गलत कदम मत उठाइए। अभी हमारी पूरी टीम आपके साथ है, बापू हमारे साथ हैं, और बापू ने वादा किया है कि आपकी कर्जा मुक्ति की लड़ाई लड़ेंगे। और जैसा अभी हिमाचल सरकार ने कहा, 1 लाख रुपए तक का व्यापारियों का, नौकरी करने वालों का 1 लाख रुपए तक का कर्जा माफ किया उन्होंने। ऐसे ही हम अपील कर रहे हैं गुजरात सरकार से कम 5 लाख रुपए तक का कर्जा माफ किया जाए। समस्या गंभीर है, चाहे कितना ही कर्जा हो उनके ऊपर, कम से कम 5 लाख तक का उनको राहत दी जानी चाहिए। और जिनका कर्जा माफ नहीं हो सकता उन्हें लोन भरने के लिए 2 साल का समय दिया जाना चाहिए। ऐसी हम अपील सरकार से कर रहे हैं। बाकी आप लोग जब मीडिया के साथ ही इन लोगों से बात करेंगे तो पता चलेगा समस्या बहुत ज्यादा गंभीर है। बैंकिंग लॉज नहीं मालूम है लोगों को अवेयरनेस नहीं है, तो वो अवेयरनेस देने का भी काम हम लोग कर रहे हैं। और हमारी कोशिश ये है कि कोई गलत कदम कोई व्यक्ति ना उठाए। कर्जे की अगर बात करें तो कर्जे में ज्यादातर खेत चलाने वालों में बहुत दिखाया जाता है। जी जी। और उनकी समस्या भी बहुत हो रही है, तो उनके लिए आप क्या पहल रहेंगे? बापू बताइए, किसानों के लिए क्या करेंगे गुजरात के? देखिए, गुजरात के किसान दुखी है। अभी जो 2 महीने पहले जो बारिश का कहर हुआ उससे और तो पूरा किसान का 3 महीने की जो सीजन होती है वो खत्म हो गई। तो हमने उस समय कहा था कि किसान का जितना भी कर्जा हो, मैं किसान और कामदार दोनों को कर्ज मुक्त किसान, कर्ज मुक्त कामदार। देखिए, कर्जा कंपलसरी आदमी जब लेता है जब कोई रास्ता नहीं होता है तब। तो गुजरात के किसानों का कर्जा माफ करिए। हमने यूपीए गवर्नमेंट 2004 में थी तो 72,000 करोड़ रुपये किसानों के, 72,000 करोड़ ये माफ किए थे। और गुजरात में जितने भी किसान कामदार का कर्जा हो वो भी हम माफ करने की डिमांड करते हैं। मैंने किसानों का सम्मेलन करेंगे, पूरे गुजरात में इनके बीच जाएंगे और कहेंगे कि आप जिस सरकार के माध्यम से आपने जो यहाँ अभी कर्ज में फंसे हैं वो सरकार हटाइए, दूसरी सरकार खुद की लाइए जो आपकी बात माने, आपका कर्जा मुक्त कर। इतना नहीं, सीजन शुरू होती है तो वो कहाँ से लाएगा गेहूं का बीज, कहाँ से लाएगा कपास का बीज, दूसरा तीसरा, बहुत डिफिकल्ट है। और उसके लिए फिर कर्जा लेना पड़ता है, फिर चक्कर में फंसना पड़ता है। और सरकार देखती भी नहीं। एमएसपी की डिमांड है जो किसानों की, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, वो भी सरकार नहीं करती है। हमने तो किसानों के लिए जब कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने भाव बढ़ाए खरीद के, तो तकरीबन मैं मुंबई जाकर जितने बैंक वाले थे, बैंक के मालिकों से मिलकर हमने कहा 10,000 करोड़ रुपए का हमको कर्जा दीजिए। हमने बैंकों से 10,000 करोड़ रुपए का कर्जा लिया, किसानों की कपास की खरीदी की। भारत सरकार को शायद 2500 करोड़ रुपया नुकसान हुआ, लेकिन वो नुकसान गवर्नमेंट ने एक ही साल में वापस आ गया। कॉटन के भाव जो बढ़े, तो किसान के लिए कर्जा लो कोई बात नहीं। तो ये सब कुछ करने की नीयत, इंटेंशन, आपको किसान के प्रति हमदर्दी होनी चाहिए। आज के बीजेपी के रूल में कोई भी इंसान, गरीब हो, रुपये, किसी को, इनको जो बड़े लोग हैं, अदानी अंबानी और पैसे वाले लोग, इनके प्रति बिना मतलब का प्रेम है और हमारे प्रति नफरत है, गुस्सा है। हम मर जाए ये लोग हम आए नहीं। अहमदाबाद से सीनियर संवाददाता योगेश गोस्वामी की रिपोर्ट। चिलौड़ा पुलिस ने नेशनल हाईवे 48 पर चंद्राला आगमन होटल के सामने हिम्मतनगर से चिलौड़ा की ओर जा रही गुजरात ट्रैवल्स बस से 4,67,909 रुपए की विदेशी शराब के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई में पुलिस टीम के सदस्य इंस्पेक्टर एसजे चौहान, सब इंस्पेक्टर जीएम राठौर, एपीओ पलुंद्र सिंह, गजेंद्र सिंह और एपीओ संजय भीखा शामिल थे। गांधीनगर से सीनियर संवाददाता अमित पटेल की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।